Hello everyone, welcome to Commerce Net Scholars. In today's video, we'll be discussing about the methods of premium computation. What are the three methods under which we compute the premium for the insured and make an information to the insured that this is the amount of premium that you are required to pay based on certain criterion. There are a number of important elements when we are talking about premium calculation or computation that we have already discussed, and most important of all is the mortality table that we have already done the theoretical part as well as the practical aspect concerning the construction of mortality table. Today we will understand that when we come to premium computation, what are the different methods as to which we can compute the premium for an insurance policy. Now let's start with it. Talking about the methods of premium computation, there are three broad methods. First is the assessment plan, second is the natural premium plan, and the third is the level premium plan. So these are the three basic methods of computing the premium for an insurance policy. Let's discuss them one by one in detail. Talking about the assessment plan, under this plan, premium computation, the rate of premiums are not fixed. This you need to understand, that the rate of premiums are not fixed under the assessment plan. The policy but are collected from the surviving member or a group in order to pay for the sum assured to the beneficiary. Simple words में I'll explain you what assessment plan is. Basically आप insurance policy क्यों लेते हो? This is taken to benefit the family of the deceased. Life insurance policy is basically taken to benefit the family of the deceased. असेसमेंट प्लान के अंदर प्रीमियम कंप्यूटेशन का तरीका ये होता था कि जो भी डिसीज्ड मेंबर होता था, एक कोई ग्रुप ऑफ पीपल, दे कम अप टुगेदर एंड दे डिसाइड दैट दे आर गोइंग टू reap the benefits of the insurance policy. They are coming together, they are making certain contributions to the insurance policy. अब क्या होता था कि उसमें से किसी मेंबर की अगर डेथ हो जाती थी तो उसका जो भी अमाउंट होता था वो बाकी के सर्वाइविंग मेंबर्स से कलेक्ट किया जाता था, कंट्रीब्यूट किया जाता था. तो अल्टीमेटली अगर आप देखो कि जो पर्सन, अगर मान लो 10 लोगों ने एक साथ पॉलिसी ली है और उसमें से एक साल के अंदर 2 लोगों की डेथ हो जाती है, तो बाकी के जो 8 मेंबर्स बचे हमारे पास, उनके पास तो फाइनेंशियल बर्डन आ गया ना, क्योंकि वो अपना पार्ट तो पे करेंगे ही, बाकी का जो 2 लोगों की डेथ हो चुकी है उस ग्रुप में से, क्योंकि अब सिर्फ 8 ही मेंबर सर्वाइविंग हैं, तो उन दोनों का भी जो बर्डन है वो इन 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली 2 लोगों के चार्जेस से तो उनका बर्डन बढ़ गया ना. माइट नॉट बी पॉसिबल कि वो उनकी फाइनेंशियल बेयरिंग कैपेसिटी में हो. ये होता था असेसमेंट प्लान कि डिसीज्ड मेंबर के बाद जो पॉलिसी का अमाउंट है वो उतना ही रहेगा और वो सर्वाइविंग मेंबर्स के साथ जो है कंटिन्यू होता रहेगा, और जो भी डिसीज्ड की फैमिली है उसको कॉम्पेंसेशन मिलता था. नाउ इस मेथड का एक जो ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि ये एक अनसाइंटिफिक और क्रूड मेथड था प्रीमियम कैलकुलेशन का. दिस वाज एन अनसाइंटिफिक एंड क्रूड मेथड ऑफ प्रीमियम कंसिडरेशन. अंडर दिस प्लान, persons interested used to form groups of mutual clubs and contributed voluntarily. Now, on the death of a member, contributions to be made from the surviving group were assessed and the collected amount was utilized to pay the dependents of the deceased. तो आप समझ पा रहे होगे कि ऑल टुगेदर कितना ज़्यादा एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाता था सर्वाइविंग मेंबर्स पे, क्योंकि अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, इक्वली एलोकेटेड नहीं था कि किसको कितना प्रीमियम पे करना है. लेकिन अगर हम आज की सिचुएशन को कंसिडर करते हैं तो जो प्रीमियम आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी कलेक्ट करती है वो मोर्टेलिटी टेबल को रेफर करके करती है और कई सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके करती है ताकि किसी एक मेंबर पे सारा का सारा फाइनेंशियल बर्डन ना आ जाए. इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो समझ लेते हैं. सबसे पहला लिमिटेशन था अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन. आपको पता ही नहीं कि आपको कब कितना कंट्रीब्यूट करना है. जब तक आपके ग्रुप के सारे मेंबर्स सर्वाइविंग हैं आप अपना अमाउंट दे रहे हो, वंस दे आर डिसीज्ड आपको उनका भी अमाउंट पे करना है. सो देयर वाज सम अनसर्टेनिटी इन द पेमेंट. It ignores the age of contributors. No matter what age are you, till the time you are alive, you are going to make the contribution to the insurance policy.
This was again a drawback. And the third drawback said uncertainty about the compensation. You are unaware that what kind of compensation you are going to get. Because अगर आप 8 लोगों की बात करो जिनको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है, अगर उनमें से कोई एक फाइनेंशियली इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा तो दिस इज बट ऑब्वियस कि जो कॉम्पेंसेशन आपको मिलने वाला था वो तो अपनी वैल्यू से और ज़्यादा ही कम हो जाएगा. सो दिस वॉज अगेन अ ड्रॉबैक दैट असेसमेंट प्लान फेस्ड. सो this is the reason why this plan proved to be inequitable and unscientific and was therefore discontinued. So this system was followed initially जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने इनिशियल ईयर्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब इतना ज़्यादा नॉलेज ना लोगों के पास था और ना इंश्योरेंस कंपनीज कोप अप कर पा रही थी सिचुएशन को, तब ये असेसमेंट प्लान वैलिड होता था. असेसमेंट प्लान के बाद आया नेचुरल प्रीमियम प्लान. दिस प्लान इज़ बेटर एज कम्पेयर टू असेसमेंट प्लान. ऑब्वियसली उस प्लान से बेटर कोई भी प्लान होगा सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन द एज ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप. यहाँ पे नेचुरल प्रीमियम प्लान में फैक्टर क्या है आपके पास फैक्टर है एज ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप, राइट. Under this method, the individual contribution is calculated based on the age of the insured. The older members pay higher amounts of premium than the younger ones. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप जितना लेट करोगे इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका प्रीमियम उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. अगर आप यंग एज में इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, से एट द एज ऑफ 20 ईयर्स और 25 ईयर्स, और आपको उस पॉलिसी को 20 साल या 25 साल के लिए कंटिन्यू करनी है, तो आप जो प्रीमियम का अमाउंट पे करोगे, एक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है से फॉर एग्जांपल 60 ईयर्स की, तो आपके पास 40 साल हैं उस प्रीमियम को इक्वली डिवाइड करने के लिए. तो आप क्योंकि कम एज में इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो अब आप जो प्रीमियम पे करोगे वो कंपैरेटिवली कम होगा. लेकिन अगर कोई पर्सन 40 साल के एज में इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 60 साल ही है तो उसके पास बचते कितने साल हैं, जस्ट 20 ईयर्स, तो उसका जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा. It also provides for the payment of different premium rates at different ages. Different ages पे आपके पास different premium rates होगा, as I told you right now. The most important limitation of this method is that the amount of premium charged increases every year as one advances in age. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा as per the natural premium plan. So this method was again, you can say, not that capable of calculating the premium, and hence we had the third method of the level premium plan, which obviously proved beneficial and is used in today's time. Now natural premium plan को आप इस ग्राफ के थ्रू बहुत आराम से समझ सकते हो. You can say the graph is going up, right? The graph is going up, that is जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो वैसे वैसे आपके जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है. नाउ मेरिट्स इसके देख लेते हैं. इट इज़ अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रीमियम विद द हेल्प ऑफ मोर्टेलिटी टेबल. ऑब्वियसली योर मोर्टेलिटी टेबल विल प्रूव टू बी एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे एज कंसिडर हो रहा है और मोर्टेलिटी टेबल बेसिकली आपको एज और नंबर ऑफ लिविंग सर्वाइविंग डेड यही प्रोवाइड करता है. लोअर प्रीमियम इज चार्ज एट लोअर एज. अगर आपने कम एज में पॉलिसी ले ली है तो यू आर एट अ बेनिफिट, आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा. एंड प्रीमियम्स आर कलेक्टेड इन एडवांस. प्रीमियम एडवांस में कलेक्ट कर लिया जाता है सो दैट पॉलिसी लैप्स होने का जो एक प्रॉब्लम होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है. डीमेरिट्स क्या है? हायर प्रीमियम्स आर चार्ज एट ओल्ड एज, हेंस अनअट्रैक्टिव फॉर ओल्ड एज पर्सन्स. जो काफ़ी एज के लोग हो चुके हैं, जिन्होंने एक पर्टिकुलर एज अचीव कर ली है, उनके लिए पॉलिसी इतनी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं उनका सोर्स ऑफ इनकम भी कम हो रहा है और प्रीमियम भी उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है. तो ये अनअट्रैक्टिव सा हो जाता है फॉर ओल्ड एज पीपल. प्रीमियम रेट्स आर नॉट स्टेशनरी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है. As the premium increases year after year, the possibility of the insurance being discontinued at later stage also increases. अभी आप जब 20 years के थे तो आप एक अमाउंट, जैसे मान लो कि आप 10,000 प्रीमियम पे कर रहे थे, फिर आप 25 के हुए तो आपको 20,000 प्रीमियम पे करना पड़ा. 30 के हो रहे तो आप 30,000 पे करें. 40 के हुए तो आपने 40,000 प्रीमियम पे किया. तो अगर ये देखो, इस चीज़ को एनालाइज करो, तो माइट नॉट बी पॉसिबल कि बढ़ती एज के साथ आपकी इनकम बढ़ रही हो. माइट बी पॉसिबल कि क्योंकि आपकी एफिशिएंसी कम होगी विद द ग्रोथ ऑफ द एज, तो आपका जो पेमेंट है माइट बी पॉसिबल कि वो कम हो. तो इस पॉलिसी को इस तरह से कंटिन्यू कर जाना काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होता था लोगों के लिए. हेंस
एक एज पे जाके एट अ लेटर एज पीपल वर हैविंग अ टेंडेंसी टू डिसकंटिन्यू देयर इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद थर्ड मेथड आया हमारे पास लेवल प्रीमियम प्लान का, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है अब तक का, जिसमें जो टोटल प्रीमियम होता है उसको डिवाइड करते हैं इक्वली ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स ओवर विच द पॉलिसी होल्डर एग्रीज टू पे द प्रीमियम। और ये मेथड अभी भी प्रिवलेंट है एंड दिस इज द बेस्ट suitable method for calculating the premium for an insured। जितना भी आप अमाउंट एग्री कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम पे करने को, टोटल अमाउंट, जैसे मान लो कि आपने 10 साल के लिए पॉलिसी ली है और आपने डिसाइड किया कि इन 10 सालों के लिए आप टोटल जो अमाउंट प्रीमियम पे करना चाहते हो इंश्योरेंस कंपनी को LIC के लाइफ इंश्योरेंस के लिए, वो आप दोगे उन्हें 50,000। अब इस 50,000 के अमाउंट को 10 साल तक के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि हर साल आप 5,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को दोगे। क्योंकि ये स्टैटिक रहने वाला है, आपको वेल इन एडवांस पता है कि आपको हर साल इतना अमाउंट सबमिट डिपॉजिट करना है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो ये पॉलिसी आपके लिए बेटर प्रूफ होती है। और इस तरह से जब आप प्रीमियम पे करते हो आपको अमाउंट वेल इन एडवांस पता है, सो यू आर रेडी टू पे द प्रीमियम विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी क्योस, विदाउट एनी कंफ्यूजन। Now, level premium plan eliminates the hardships at old ages and it envisages a uniform rate system। आपको पता है कि किस रेट पे आपको पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है, तो आप अपनी लेटर एज की अर्निंग जो आपका एक्सपेक्टेंसी है उसको कंसिडर करके या प्रीमियम लेते हो। अंडर लेवल प्रीमियम प्लान द पॉलिसी होल्डर्स बिकम अवेयर ऑफ द रेट ऑफ प्रीमियम सिंस इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंश्योरेंस पीरियड। आपको पहले से पता है आपको कितना पे करना है। This is considered to be the most scientific method based on mortality, under which uniform rate of premium is determined on the basis of attained age and is payable throughout the term of the policy। Now, जल्दी से हम आप लेवल प्रीमियम प्लान का डायग्राम समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हो कि ये कांस्टेंट रह रहा है, प्रीमियम जो है आपका वो कांस्टेंट रह रहा है विद एवरी एज, क्योंकि आपको पता है कि एक बार आपने डिवाइड कर लिया, एक बार आपने सेगमेंट कर लिया, टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी को डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ ईयर्स जितने के लिए आप पॉलिसी ले रहे हो, और फिर वो यूनिफॉर्म अमाउंट और नंबर ऑफ ईयर्स तक आगे चलने वाला है। नाउ मेरिट्स देख लेते हैं। द प्रीमियम इज कॉन्स्टेंट एंड स्टेशनरी। द मेथड इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। आपको पता है सिर्फ क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया। Premiums are received in advance, so the fund is created to earn interest by the insurance company. The method has both elements of saving as well as safety. आप सेव भी कर पा रहे हो और आपकी पॉलिसी आपको पता है कि सेफली आगे तक भी चलने वाली, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो अपना अमाउंट पे करने के लिए। जल्दी से आप डिफरेंसेस देख लेते हैं नेचुरल और लेवल प्रीमियम प्लान के। सबसे पहले तो मीनिंग की बात हो गई, मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल प्रीमियम प्लान में मोर्टेलिटी टेबल और एज को कंसिडर करके प्रीमियम चार्ज होता है और इसीलिए हर साल आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो इंक्रीज होता रहता है। लेकिन लेवल प्रीमियम प्लान एक पर्टिकुलर टर्म के लिए आपकी पॉलिसी का आपका प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको इक्वली डिवाइड कर देता है। Premium is not constant under natural premium plan, but obvious increases with the increase in age, but premium remains constant for the level premium plan, क्योंकि वो एक बार डिसाइड हो गया। एज हायर द प्रीमियम इन नेचुरल प्रीमियम प्लान, लेकिन इंक्रीज इन एज विल नॉट अफेक्ट द प्रीमियम इन द लेवल प्रीमियम प्लान, वो कांस्टेंट रहने वाला है। लाइफ फंड इज नॉट क्रिएटेड, बट प्रीमियम रेट्स आर हायर एट लोअर एज, हेंस फंड इज क्रिएटेड, क्योंकि आपको लोअर एज पे भी बेटर प्रीमियम आपको मिल रहा है, सिमिलर प्रीमियम ही मिल रहा है सारे इंश्योर्ड से, तो द इंश्योरेंस कंपनी इज हैविंग अ टेंडेंसी टू क्रिएट अ लाइफ फंड। Only element of safety is present when we are talking about the natural premium plan, but in the level premium plan you have the element of safety for the insured as well as investment element for the insurer. No surrender value is available in a natural premium plan, but if the policy is discontinued in a level premium plan, surrender value is available. Surrender value भी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ in my previous video. And the system of natural premium plan is old and not practicable, while the system of level premium plan is scientific and more practicable. अब एक सिंगल डायग्राम में नेचुरल और लेवल प्रीमियम प्लान आप आराम से समझ सकते हो कि जो चीज़ कांस्टेंट रह रही है वो हो गया आपका लेवल प्रीमियम प्लान, दैट द प्रीमियम विच इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन एज इज रेफर्ड टू एज द natural premium plan. I hope the 3 methods of premium computation were clear to you all. So that's all for today. Thank you and have a nice day.